اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم تیسری بار PSL کی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی مقابلے کے بعد فائنل میں ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے شکست۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے 160 رنز کا ہدف آخری اوور کی آخری گیند پر پورا کیا۔ مارٹن گپٹل 50 رنز بنا کر نمایاں۔ ملتان سلطانز کی جانب سے خوشدل شاہ اور افتخار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسلام آباد کے عماد وسیم نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ میگا میچ میں وننگ شاٹ کھیلنے والے حنین شاہ عبدیدہ، کپتان شاداب خان اور دیگر ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں دلاسا دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلاڑیوں کا فتح کے بعد فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ گراؤنڈ کا چکر۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلاڑیوں کا اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار۔ شائقین نے بھی کھلاڑیوں کے اقدام کو خوب سراہا۔ فلسطین کے حق میں نعرے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان کا کہنا ہے، 5 سال سے کپتانی کر رہا ہوں، ٹیم فائنل میں نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس بار ٹرافی کے لیے بہت محنت کی۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان بولے، اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے اچھا کھیلا، اس لیے وہ چیمپئن بن گئے۔ عماد وسیم نے شاندار بولنگ سے میچ کو یکطرفہ کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 آل راؤنڈر کارکردگی پر عماد وسیم فائنل کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ عماد وسیم نے فائنل میں 4 اوورز میں 23 رنز کے عوض ملتان سلطانز کے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ملتان سلطانز کے اسپن بالر اسامہ میر ٹورنامنٹ کے بہترین بالر قرار پائے۔ ملتان سلطان کے بھی بیٹر عثمان خان کو بہترین بلے باز کا ایوارڈ دیا گیا۔ عرفان نیازی ٹورنامنٹ کے بہترین فیلڈر قرار۔ سائم ایوب کو سپر آل راؤنڈر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ۔ اعظم ٹورنامنٹ کے بہترین وکٹ کیپر قرار پائے۔ شاداب خان کو PSL سیزن 9 کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ عرفان خان نیازی ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ آصف یعقوب امپائر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی فائنل میچ کی فاتح اسلام آباد یونائٹڈ کو مبارکباد، کہا یہ کسی ایک ٹیم کی نہیں پوری قوم کی جیت ہے۔ کرکٹ کا کھیل پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ PSL کے کامیاب انعقاد پر PCB سیکیورٹی فورسز، منتظمین اور شائقین کرکٹ کو خراج تحسین۔ PSL میں شرکت پر بین الاقوامی کھلاڑیوں سے بھی خصوصی طور پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، فائنل میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد یونائٹڈ کو فائنل جیتنے پر مبارکباد، کہا PSL سیزن 9 میں شائقین کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، PSL سے پورے ملک اور خاص طور پر کراچی کی رونقوں میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی PSL کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو مبارکباد۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پوری تیاری ہے، ایونٹ پاکستان میں ہی ہوگا۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے پاکستان میں کرکٹ کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ٹیم کے 11 کھلاڑی ہیں، بورڈ میں 9 بندے ہیں، کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا لیکن پیسے بھی بچانے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 2700 ڈومیسٹک میچز کروائے، اگلے 4 ماہ میں 9000 میچز کرائیں گے۔ قومی سلیکشن کمیٹی میں تبدیلیاں لائیں گے۔ قومی کپتان کی تعیناتی سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی بااختیار ہوگی، وہی جواب دہ ہوگی۔ حارث رؤف اچھا کھلاڑی ہے لیکن ٹیم کی ترجیح پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جو ملک کے لیے نہیں کھیلے گا، اس کے لیے یہی پالیسی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، کوئٹہ، چمن، نوشکائی، قلعہ عبداللہ، پشین اور دلبدین میں زلزلے سے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ کے شمال مغرب میں 150 کلومیٹر دور اور گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف افغانستان کے اندر بڑا آپریشن، انٹیلیجنس بنیاد پر حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز دارا بلوچ نے کہا، حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد گروپ آپریشن کا اہم ٹارگٹ تھا۔ حافظ گل بہادر گروپ TTP سے مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں ملوث رہا۔ دہشت گردوں کے حملوں سے سینکڑوں عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران شہید ہوئے۔ آخری حملہ 16 مارچ کو میر علی، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کیا گیا۔
पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन मीर अली हमले में मुलव्विस दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सोहरा उर्फ जानाम भी शामिल। सहरा खान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्विस था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। ISPR का कहना है इलाके में किसी भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागांग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। एहलखाना से इजहार ताज़ियत फातिह ख़ानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले से लगाया और दिलासा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के लवाहिकीन से भी इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद की मग़फ़िरत और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। तमाम शौहदा कौम के माथे का झूमर है। शौहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका का शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। अमरीकी नायब तर्जुमा वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है, तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों की रोकथाम करे। फरीकैन को मामला फ़हम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। हम पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर आज फिर मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। इदारा जाती इस्लाहात, रियल एस्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत चल रही है। IMF वफ़द ने बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक महंगाई दूसरी शशमाही में कम हो रही है। महंगाई की शरह में कमी के बावजूद इसकी सतह बुलंद है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 7.5% तक लाने के लिए मौजूदा शरह सूद जरूरी है। जनवरी 2024 में करंट अकाउंट खसारा $269 मिलियन रहा। जुलाई तक जनवरी माली साल 24 के दौरान मजमूई खसारा $1.1 अरब रहा। तरसीलात ज़र अक्टूबर 2023 से सालाना मुसलसल बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट खसारा माली साल 24 में GDP के 1.5 तक रहने का इम्कान है। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हर तदबीर नाकाम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3000 अरब तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे में 700 से 800 अरब रुपए का सालाना इजाफा होता है। पावर डिवीजन का एतराफ़। हुकाम का कहना है, बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे से मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लकारी का कहना है, गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्ज इक़दामात काफ़ी नहीं, ठोस पॉलिसी लाई जाए। किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। काश्तकार को मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए। आड़ती और मिलों वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का जायजा। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने का फैसला।
हुकाम की 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट और 5 शहरों के लिए 657 बस सर्विसेज और ब्रीफिंग। कीमतों पर कंट्रोल के इकदाम का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी अमरीका से ताल्लुका मजीद मजबूत करने के ख्वाह अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौके तलाश करना होंगे। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सनाकारी जदीद कारोबारी आइडियाज लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त सम्त पर गामजन करना, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। अमरीकी सफ़ी की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ा सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद दुरुस्त फैसला था, हम फैसले पर कायम हैं। बाज़ औक़ात राय में इख्तिलाफ हो जाता है। बैरिस्टर गौहर का कहना है शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी के बयानात माना जा सकता है, वो हमारे MNA हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। शेर अफजल मरवत का कहना है हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, मेरे बयान को निजी TV पर गलत तरीके से चलाया गया। कोर कमेटी इजलास में भरपूर एहतजाज तहरीक चलाने का फैसला किया गया। पहला जलसा 30 मार्च को इस्लामाबाद में करने की इजाज़त मांग ली। जोन सदर आमिर मसूद मुगल का डिप्टी कमिश्नर को खत। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सजा को चैलेंज कर रखा है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब, अनवारुल्लाह काकड़, अहद चीमा, रऊफ सदीकी, जुल्फी बुखारी, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और हामिद खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्तफ़ा रमदे, राजा नासिर अब्बास, फायजा मलिक, अनुशे रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट, वलीद इकबाल, मंजूर भुट्टा, जान वलेदी, नसीमुर रहमान, हसना बलोच के कागजात भी दुरुस्त। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जुमेरात तक दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले 25 मार्च तक होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी।